Good morning, viewers. Today we have Mr. Anil Gupta with us, Managing Director, V-Line Media, Kolkata. Welcome, Mr. Gupta, to our show. Could you please share the story of beginning of V-Line? V-Line is a 30 years old company. I came to Calcutta as to just my study, and after being a chartered accountant, I wanted to do something of my own. Okay. So based on that, luckily I formed this company when the very first year of my starting business itself. I formed this company, and luckily I've been carrying on with the same company from the day. That's why we could complete 30 years in the same company. We started with different kind of activities, and in manufacturing for last almost 25 years. Earlier we were manufacturing audio cassettes and blank CDs. Now we are producing water dispensers, and going forward अभी हमारा नया plant लगा है to manufacture freezers. Freezers? Yes, deep freezers. Deep freezers. Okay. That is ready. So company is bound for a very leap increase in the turnover. So I heard that you had a lot of up and downs in the business. So can you elaborate a little on that? Earlier, as I told you, we are manufacturing for last 25 years. Prior to that, we were a merchant exports company. Okay. So in that, the audio cassette at that time was a very moving item. So we were exporting some cassettes to Bangladesh, Bahrain, and Egypt and other countries. So from there on, when the merchant exports we were doing hundreds of items. Then we picked up the audio cassettes and magnetic tapes, particularly because at that time HMV, the Gramophone Company of India, was located in Calcutta. Yes. So they were getting all their stuff from Delhi or Chennai and other places. So that prompted us to get into the manufacturing of that. And the initial years we had some tough times because of the technology and other issues. But gradually we became very good into that, and our quality was being appreciated by Lata Mangeshkar and A.R. Rahman. In fact, Lata ji has made mandatory कि उनकी picture का कोई भी होगा music, उसमें V-Line का ही tape लगाना. तो ये दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि हमने almost 1 crore से ऊपर ज़्यादा कैसेट बिक्री किए थे उस समय. Oh, that's a huge brand endorsement. Thank you very much. फिर धीरे-धीरे हमने almost 20-25 country में हमने export भी करना start कर दिया था. So it was in a good demand. Okay. And your turnover was around 125 CR at that time of audio cassettes and CDs. Yeah. So that was a big turnover. I think your next competitor was T-Series. No. We started as the last in the tape manufacturing. Virtually, we became the only manufacturer. Okay. So by that time, T-Series closed down its plant. So we started supplying to T-Series also, because our quality was far more superior. We had a tie-up with the Korean companies. So although T-Series, etc., they started first, but our quality was far more superior. Okay. So as a result of which, they found no point in continuing with the manufacturing. I heard that you had a setback once the audio cassettes as a media itself lost the flavor in the market, and CDs market was also pretty complicated with the entry of new players like Mother Bear. So how was the time and how you faced that tough times, and what you did to bounce back? See, setback is a difficult word, because partially you create for yourself. Because we have always set a very high standard for ourselves. If we decide that we can be also a company who works for a Me Too product or just any product just to make money, then probably it becomes easier for you to settle down, but you will not be able to excel in your life. True. So when we started CD tapes, we were the last, but virtually we became the best in the country. In the CDs, we were the best in the country. We were the manufacturing in the Samsung brand in the country. Okay. And so it's only because of the volumes of Moser Bear and their financial depth was not allowing us to continue. तो वो दोनों ही प्रोडक्ट जो है एक साथ ही टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस हो जाने के कारण दोनों ही प्रोडक्ट एक साथ ही हमको बंद करने पड़ गए. Okay. 125 करोड़ से हम एक तरह से समझ लीजिए जीरो में आ गए. Point is that we always want to remain whatever we do as the best in the country. Okay. So when you set those standards,
So whenever you opt for a change in a business or situation comes like that, it would take you slightly longer time to get settled down. True. So when both this business closed down, we were looking for कि क्या business करें जो कि we will become the number one in the country. अगर वही हम रियल एस्टेट में या कोई स्टील इंडस्ट्री में लगा लेते तो 6 महीने के अंदर में ही सेटल हो जाते. But then we would remain a minuscule player. True. So then we, after contemplating, water dispenser came into our mind. It was already there in my mind for 2-3 years because I used to travel to Korea and China. I used to see this product has been very popularly used everywhere because it's nothing an extension of 20 liters bottle. 20 liters bottle से अगर आपको पानी पीना है तो आपको एक डिस्पेंसर चाहिए. तो 20 लीटर बॉटल का रिवाज उस वक्त भी काफी ज्यादा एक्सपेंशन हो रही थी मार्केट की. I thought this is the product where we can be the leader. And there is no manufacturer in the country. I spoke to Voltas, Blue Star. They said, okay, fine. We are importing from Korea or China. अगर आप इंडिया में चाइना की क्वालिटी या चाइना के प्राइस में दे सकते हैं तो we are okay. So I said, okay, चलो ये we discussed with internally our team. We had a good engineering team. तो हमने 2-4 पीस उनके लिए फूल के सारा देखा. ऐसा कुछ लगा नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग करना हमारे लिए डिफिकल्ट होगा. So, but sometimes overconfidence is not good. Yes. So this was one of the biggest mistake I did. That के get carried away with the thing कि भाई आपके पास में आपकी हिस्ट्री बड़ी strong रही है या you have achieved very good, तो आप you start taking things lightly. So that was a mistake on my part. So इसलिए इतना बड़ा प्लांट लगा लिया, फटाफट लगा लिया because both the business closed down, the bank's money, the funds were easily available. But the problem was to manufacture at the cost of China with such a small volume. तो वो चाइना की कॉस्ट में आ ही नहीं रहा था किसी तरह से भी कॉस्ट पे. तो ऐसा कोई ड्यूटी का भी कोई रॉ मटेरियल वर्सेस फिनिश गुड्स में कोई इतना ज्यादा कोई एडवांटेज था नहीं. और गलती से हमने एक और गलत डिसीजन ले लिया उस समय के प्लांट हमने उसी वक्त ही कलकत्ता में ये जहाँ पर मैं है ये फिलिप्स से हमने फैक्ट्री खरीदी थी. So we decided to put up the factory here. That was another very big mistake because neither there was a supply chain backup, neither कोई customers का कोई support था. So it was another wrong decision. So as a result, 3-4 years we had to struggle a lot. We had a lot of carry forward loss. Luckily for us, the two things were there in my favor. A, my passion to be continued. B, we had a deep pockets. Okay. So हम कंटिन्यू करते रहे. जितना प्रोजेक्ट में पैसा लगाया था उससे 1.5 टाइम्स तो कैरी फॉरवर्ड लॉसेस हो गए थे. Okay. So then there was a time कि फिर यहाँ पर लेबर इशू स्टार्ट हो गए. So then we relocated the plant to बद्दी, जहाँ हमारा पहले कैसेट का प्लांट था बंद पड़ा था. तो वो इसलिए वो एग्जम्पशन स्कीम खत्म होने वाली थी कि हमने उससे पहले ही उसको लगा लिया था. So उसके बाद धीरे धीरे करके प्रोडक्ट क्वालिटी और तब तक मैच्योरिटी होने लगी थी प्रोडक्ट की. We also there were some backward integrations. It started going well and वहाँ से चलते. So now we have virtually become in India we have a 94% market share in the country. Oh, that's awesome. 94%? Yes, and we are exporting to 35 countries today. Fantastic. Including to US. We are supplying to Walmart and Honeywell and other companies in US. Oh. So Anilji, what you said and what I could summarize is you are able to compete with China and produce similar or better quality product at a price which is competitive to China. Yes. तो ये आपने कैसे किया? Because generally I meet every Indian manufacturer is facing this problem and they say कि नहीं चाइना से तो compete करना मुश्किल है तो चलो हम ही importer बन जाते हैं. आप जो बात बोल रहे हैं it is perfectly okay. इसे ना कई सारी चीजें इसमें चाहिए. मतलब कितने लोग मैंने देखा अपनी फैक्ट्री बंद करके चाइना से इंपोर्ट शुरू कर दिया उन्होंने. जी सर, मेरी चौथी प्रोडक्ट है अभी तो. अब बिकॉज एज आई टेलिंग यू कि अब अगले साल हमारी कंपनी का टर्नओवर 350 करोड़ होने वाला है. वेरी गुड. अब हमने 3 प्रोडक्ट्स और चाइना के लिए, वेल रादर वी हैव बिकम स्पेशलाइज्ड इन द कंट्री टुडे. कि चाइना का अगर अभी एक कंपनी है वंडरशेफ जिसमें वो संजीव जो खाना खजाना के जो बनाते हैं
हाँ। वो एंडोर्स करते हैं, वो एक मिक्सर ग्राइंडर चाइना से मंगाते थे, महीने का 40,000 पीस। अच्छा। उनको किसी ने बोल दिया कि वो कोशिश कर रहे थे कि इंडिया से हमारा लोकलाइज हो जाए, बट इस प्राइस में कोई बना के देने को तैयार नहीं था। तो उनको किसी से पता चला कि मिस्टर गुप्ता इज वेरी एक्सपर्ट इन दिस, आप उनसे बात कीजिए। तो वो मेरे पास आए, तो मैंने सारा चीज उनका समझा। तो मैंने बोला सर ये प्रोजेक्ट 1 साल लगेगा, 8-9 महीने लगेंगे, और हम फिर चाइना से कुछ इंपोर्ट नहीं करेंगे, हमें सारा बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और सेटअप थोड़ा लार्ज बनाना पड़ेगा। आप 40,000 पीस बना रहे हो, लेकिन हम इसका 80,000 पीस का सेटअप बनाएंगे। 20-25,000 पीस आप एक्सपोर्ट करोगे तो करोगे, नहीं तो हम कर देंगे, बट 80,000 मिनिमम इसका स्केल है। इससे कम में बना के चाइना के कॉस्ट में नहीं आएगा, और सारे मोल्ड्स, डाइस, सिस्टम्स, प्रोसेस हम अपने आप सेट करेंगे और वो बनाएंगे। एंड टुडे उनका, जब तक हमने 1 साल लगा, उनका वॉल्यूम भी 40,000 से 55,000 हो गया, और हमने भी उनका कुछ एक्सपोर्ट कर, अभी हम ऑलरेडी महीने का 70-75,000 पीस बना रहे हैं। अरे वाह। 1 साल के अंदर में ये बिजनेस से हमारा महीने का 7 करोड़ का टर्नओवर हो रहा है। फैंटास्टिक। और मिक्सर ग्राइंडर तो मतलब बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है। कोई भी, आज मैं बता रहा हूँ सर, आज की तारीख में यस, चाइना भी बहुत चेंज हो गया, चाइना के कॉस्ट बहुत बढ़ गए हैं, और चाइना में लो एंड प्रोडक्ट्स या उतनी कोई कॉस्ट कॉम्पिटेंसी, उनके पेट भी भर गए हैं, तो दे आर नॉट द सेम चाइनीज व्हाट दे यूज्ड टू बी। तो आज हम इजीली बीट कर सकते हैं उनको, हर मोर और लेस, बट यस यू हैव टू पिक अप सम प्रोडक्ट्स विद वेरी जुडिशियसली। आज जैसे एयर प्यूरिफायर है, ऑल्दो मार्केट में बड़ा उसका चल रहा है, एयर प्यूरिफायर है, बट एज ए मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिया भी रेडी नहीं है, क्योंकि इतने सारे डिजाइन हैं, अभी टेक्नोलॉजी स्टेबलाइज हुई नहीं है। हम कॉमोडिटी बना के उनका मैच कर सकते हैं, लेकिन हम उतने वैरायटी नहीं बना सकते चाइना की। अच्छा। हम नया डिजाइन फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं कर सकते। आपको एक प्रोडक्ट मिल जाए, डे इन डे आउट वही काम करना है, तो आप चाइना को बीट कर सकते हो सिस्टमेटिक अप्रोच से। बट अगर वैसा प्रोडक्ट है कि जिसमें रोज नए डिजाइन बनाने हैं, रोज नए मोल्ड्स बनाने हैं, तो उसके लिए हम रेडी नहीं है, बिकॉज ना हमको वॉल्यूम मिलती है, ना हमको मोल्ड एमोर्टाइजेशन का टाइम मिल पाता। आप इन्वेस्ट करोगे तो मोल्ड को, डिजाइन को 2 साल, 4 साल, 6 साल चलाओगे ना, तभी तो मोल्ड का कॉस्ट एमोर्टाइजेशन होगा। और अभी एयर प्यूरिफायर में आप देखेंगे हर साल नए नए डिजाइन आ रहे हैं, जो इस साल डिजाइन अगले साल चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास इतनी वॉल्यूम्स है नहीं, तो यू हैव टू चूज द प्रोडक्ट वेरी जुडिशियसली। अभी जो हमारा नया प्रोडक्ट, अभी हमने नया फ्रीजर का प्लांट लगाया, मैंने देखा एक दिन किसी से बात करते करते, ये फ्रीजर है आइसक्रीम फ्रीजर, वाला 25 साल से सेम डिजाइन चल रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं है, कुछ नहीं है। ये 8 लाख पीस की मार्केट है टोटल, उसमें से 4.5 लाख पीस चाइना से इंपोर्ट होता है। अच्छा। मैंने आपके इन्फो ड्राइव से आपके जो थे उनसे बोला यार पूरा मुझे को डाटा डाउनलोड करना है। मैं सरप्राइज रह गया, ये तो डब्बा है, ये आइसक्रीम का डब्बा है, इसमें कोई डिजाइन नहीं चेंज होता, कोई कलर चेंज नहीं होता, सब कुछ ये है, वॉल्यूमिनस आइटम है, सीजनल आइटम है। ये चाइना से इंपोर्ट करने का मतलब क्या है? फ्रेट इसमें इतना लगता है। मैंने वोल्टास में बात की, ब्लू स्टार में बात की, या जो 2-4 जन उनसे बात की, बोले यार हम खोज रहे हैं कोई आदमी चाइना के कॉस्ट में बना के देने को तैयार। बनाने को हम खुद भी बनाते हैं, लेकिन हमारा चाइना के कॉस्ट में नहीं बनता। तो मैं बोला अच्छा सर मैं आपका प्लांट देखना चाहता हूँ। तो उनका प्लांट में देखा तो मुझे लगा सारा इनएफिशिएंसी से प्लांट भरा पड़ा है। हमारे प्लांट की लोकेशन वो यहाँ से उठाएंगे, वहां डालेंगे, यहाँ से डालेंगे, वहां डालेंगे, इन सब चीजों से हमारे कॉस्ट बढ़ जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। ट्रक आता है तो अनलोड होने में 2 घंटा लगता है, चाइना में जाएंगे तो 10 मिनट में अनलोड हो जाएगा। तो वो जो 50 मिनट बचे या 110 मिनट बचे, वो तो किसी के कॉस्ट में आए ना। तो ये अभी हमने जो प्लांट लगाया है, अभी हमने आज तक एक पीस भी नहीं बनाया और एक पीस भी बेचा नहीं है, लेकिन हमने प्लांट सारा इंडिया का सबसे बड़ा लगाया 3 लाख स्क्वायर फीट का प्लांट लगाया। तो लेकिन प्लांट इस तरह से डिजाइन किया कि वहां पर इनएफिशिएंसी का कोई स्कोप नहीं है। कोई जगह में ऐसा नहीं होगा कि कोई आलतू फालतू आदमी खड़ा है या खर्चा होगा, सेकेंडरी ऑपरेशंस होंगे, ये होंगे, वो चाइना की फितरत है कि दे प्रोड्यूस इन दिस मैनर कि इनएफिशिएंसी वहां नॉनसेंस नहीं। हमारे यहाँ नॉनसेंस बहुत है। अभी हमने हमारा प्राइस क्या है, हम सबको बोलते हैं हमारा प्राइस जो चाइना का लैंडेड भाव है वही हमारा। मैंने बोला सर आप 1 साल के बाद देखना, इंडिया में हम इंपोर्ट 0 कर देंगे और 20 कंट्रियों में एक्सपोर्ट करेंगे। You're so passionate, I could see this.
awesome. But India needs this kind of knowledge and confidence. आज काफ़ी लर्निंग रही मेरे लिए एंड आई एम श्योर आपके जो मैसेजेस हैं वो मेरे रीडर्स को बहुत उनसे काफ़ी फायदा मिलेगा. थैंक यू सो मच.